Oh, date. A very good morning and assalamu alaikum to all the students. BSN, are you there? Please ensure the presence of all the students sharp at 9 a.m. so that we may proceed towards the lecture. So I think most of them are present and students. So those students are, I think, getting online because I am able to see a few students are there. Not all the students are right now present. Okay. So all of you are able to hear me. Audio, video is clear so that we may proceed towards the lecture. And what we are going to study is nucleic acid. Very important topic and quite easier as well because you have done it in your FSC. So it is not as tough as other topics. And we all know about the DNA and RNA, their composition, their functions, their structure. So it is going to be a revision, kind of the revision of the topic. And but there are some extra terminologies definitely as you go for higher degree. Then definitely there are certain extra things which have been added in this chapter also, which we will study today, inshallah. So nucleic acids, we all know that they are the polynucleotides which are joined by the phosphodiester bonds. Like carbohydrates, we have the glycosidic linkage. Like proteins, we have the peptide linkage. In the same way, when we talk about nucleic acids, we have a kind of linkage. And what kind of linkage is present in nucleic acids? That is the phosphodiester bond. Before covering what is nucleic acid and what is their composition, they have also mentioned the nucleoproteins. Nucleoproteins means that is the compound protein in which there are two components. In nucleoproteins, there are two components, definitely, as the name is indicating. One is the protein part, and another is the nucleic acid part. So, nucleic acid part means either DNA or RNA is present. And when DNA and RNA combine with the protein, it is called as the nucleoprotein. The non-protein part is the nucleic acid, and the protein part is mainly histones and protamines. So we have done with the chapter of the proteins, and in proteins we have also learned about the histones and the protamines. These are the examples of the nucleoproteins, means that they are present along with the DNA RNA in our cells. They make a large part of the nucleic acid material of the cells, and they're found in the nucleus, but they're also found in the cytoplasm in association with ribosomes. So nucleoproteins are basically proteins which are present in the nucleus of any cell, because DNA is mostly located in the nucleus of the cell. And if we talk about RNA, so RNA is located somewhere in the cytoplasm outside the nucleus. So this is also the difference between DNA and RNA. The location of these two nucleic acid is different in our body, DNA and RNA.
Now moving towards the nucleic acid, that they are polynucleotide chains which are joined by the phosphodiester bonds. अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम कह रहे हैं इसका क्या मतलब है बेसिकली? पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है बेसिकली? न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो कि 3 चीजों से मिलकर बनी है, जिसमें एक शुगर, एक फॉस्फेट और तीसरा होता है जी नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करते हैं तो फिर वो बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। नाउ द न्यूक्लिक एसिड्स हैव टू यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली तो ये reproduce their kind or to store, express and transmit genetic information. We all know that the function of the nucleic acid is to transmit the genetic information from parents to offsprings. And second function is to undergo the mutation. It means any change in the occurring in the proteins, any change occurring in the DNA sequence lead towards the mutation. Mutation means any change in the sequence of the DNA or the protein. कोई भी अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, डीएनए में, प्रोटीन की सीक्वेंस में, तो सारा फंक्शन किसी भी प्रोटीन का इससे खराब हो सकता है। इस चीज को हम कहते हैं म्यूटेशन। टाइप्स नाउ, न्यूक्लिक एसिड्स are of two types: RNA ribonucleic acid and DNA deoxyribonucleic acid. Now, it is the basic hereditary unit in the humans. It carries the genetic information from one generation to the next. मेजर जो न्यूक्लिक एसिड ह्यूमन बीइंग्स में है और ज़्यादातर एनिमल्स में भी, वो तो है डीएनए। और जो आरएनए है ये हम सब ने पढ़ा है कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और इसके अलावा ये वायरसेस में प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट आरएनए, दैट इज डीएनए। Now the components of the nucleic acid. Nucleic acids are made up of 3 components, जैसे मैंने अभी बताया था। पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है शुगर और तीसरा है फॉस्फेट। Nitrogenous bases, these are two groups of nitrogen bases which are known as purines and pyrimidines. सबको पता है कि there are two kinds of nitrogenous bases, एक को हम प्यूरीन कहते हैं और एक को हम pyrimidine कहते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में होता है फर्क, स्ट्रक्चर में एज वेल एज इनकी जाहिर है कंपोजिशन में भी फर्क होता है दोनों बेसिस की। प्यूरीन्स में जी अब एडेनिन आती है और गोनिन आती है, और जो पिरिमिडीन्स है ना, इसमें थायमीन है और साइटोसिन है और यूरासिल है। आहिस्ता कर दो। सेकंड कंपोनेंट जो है जो न्यूक्लिक एसिड बना रहा है, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट जो न्यूक्लिक एसिड बना रहा है उसको हम कहते हैं जी शुगर। The sugar which is present in a nucleic acid is always a pentose sugar. ठीक है, जो भी शुगर न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है ना, वो हमेशा होती है पेंटोज, मतलब कि उसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन जो शुगर है ना, जो न्यूक्लिक एसिड बना रही है, दैट इज राइबोज। चाहे ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो चाहे डीऑक्सीडाइज फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन शुगर एक ही होती है विच इज राइबोज, विच इज अ पेंटोज शुगर। अब जो राइबोज जो है अगर तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगी ना, ठीक है, यानी कि जिस फॉर्म में ओरिजिनल जो इसकी नेटिव फॉर्म होती है, तो वो आरएनए में प्रेजेंट है।
एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन डीऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है, यानी कि उसमें से जो है ऑक्सीजन रिमूव किया जाए, अगर डी ऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर उसमें से ऑक्सीजन रिमूव किया जाए तो फिर हम उसको वो प्रेजेंट होती है डीएनए में। ठीक है जी, तो राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ शुगर्स विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। राइबोज प्रेजेंट है आरएनए में और डी ऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है डीएनए में। थर्ड जो कंपोनेंट है दैट इज फॉस्फेट। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स हैं जी न्यूक्लिक एसिड के, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और लास्ट वाला है फॉस्फेट। फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय द फॉस्फोरिक एसिड। बॉडी में हमारी जो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ज़ाहिर है हमारी बोन्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सेल्स में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 जिसका फॉर्मूला है। तो ये जो है ना वो प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों चीज़ों से, ज़ाहिर है तीनों चीज़ें बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इन तीनों चीज़ों से फिर जो है ना बनता है डीएनए और आरएनए। Now the stages of nucleic acid formation. Nucleic acid is formed by the polynucleotides, ठीक है, poly means जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करते हैं, तो जी न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करेंगे और बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फिर बनाएगा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड जो है, एक चीज़ है न्यूक्लियोसाइड और एक चीज़ है न्यूक्लियोटाइड, दोनों में है डिफरेंस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। सॉरी। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? अगर तो नाइट्रोजनस बेस और सिर्फ शुगर अटैच कर रही है, if there is only combination of nitrogenous base and sugar means there is no phosphate group, कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, तो इसका मतलब है ये है न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जाम्पल, if adenine is combining with the ribose sugar, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा एडेनोसिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस की ही बेस पे जो है ना इसकी नेमिंग इनकी दी हुई है। अगर एडेनिन शुगर के साथ अटैच हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एडेनोसिन। अगर गोनिन शुगर के साथ अटैच हो रहा है तो उसको कहते हैं गोनोसिन। अगर थायमिन अटैच हो रहा है तो उसको हम कहेंगे थायमिडीन। इसी तरह से अगर साइटोसिन अटैच हो रहा है तो उसको कहेंगे साइटिडीन। अगर यूरिडिन अटैच हो रहा है तो उसको हम कहेंगे यूरिडीन। ठीक है, जो कि सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, क्योंकि साथ साथ हम इसके डिफरेंसेस भी अभी करते जाते हैं। तो जैसे जैसे बेसिस चेंज हो रही हैं, देखो वैसे वैसे उसकी नेमिंग भी चेंज हो रही है। तो नेमिंग depends upon the presence of certain bases which combine with the sugar and which forms the nucleoside. So these are the bases which combine with sugar and they form the nucleosides. Adenine, guanine, cytosine can combine with both ribose and deoxyribose and therefore their nucleosides as present in both DNA and RNA. अब जो एडेनिन है और गोनिन है और जो साइटोसिन है ना, ये तीन और थायमिन, ये चार बेसिस प्रेजेंट होती हैं डीएनए में। लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पे एक और बेस होती है, थायमिन नहीं होती। थायमिन हैज बीन रिप्लेस्ड विद द बेस व्हिच इज कॉल्ड एज यूरासिल। ठीक है जी, तो ये तो इजी से हैं डिफरेंसेस, हमने लाजमी जो है वो
याद रखने हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में। तो पहला डिफरेंस तो हो गया इनकी लोकेशन का, ये प्रेजेंट किधर होता है डीएनए और किधर प्रेजेंट होता है आरएनए। डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और आरएनए प्रेजेंट है आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर। दूसरा डिफरेंस है जी बेसिस का, कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन प्रेजेंट है और आरएनए में थायामीन को रिप्लेस किया गया है यूरासिल से, ठीक है। तो जी हो गए। फिर तीसरा डिफरेंस ये है कि जो डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड और जो आरएनए है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो साथ साथ हम इसके डिफरेंसेस भी करते जाएंगे। अब जी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। और जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जब ये न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर जो पहले अटैच थी जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं, जब इसके साथ फॉस्फेट मिल जाएगा तो इसको हम कह रहे हैं दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। अब देखो एडिनोसिन जो है वो जब फॉस्फेट के साथ अटैच कर रहा है तो फिर वो बना रहा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। अब इसमें अगर 3 फॉस्फेट होना तो ये बनाएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट विच इज कॉल्ड एज ATP। तो समझ आई कि ATP क्या है। ATP जो हम बार बार बात करते हैं ना, वो है जी हाई एनर्जी कंपाउंड। लेकिन नेचर क्या है उसकी, नेचर उसकी ये है कि वो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ATP इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोसिन के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो इट इज कॉल्ड एज AMP, और एडिनोसिन के साथ अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं तो इट इज कॉल्ड एज ATP एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी तरह से गोनोसिन है, इसके साथ जब फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। थायमीन के साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो थायमीन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन के साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। यूरासिल के साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो ये नेमिंग जो है जी वो डिपेंड कर रही है बेसिस पे, ठीक है। और हमने याद रखने हैं कि न्यूक्लियोसाइड कौन सा बनेगा और न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनेगा, ठीक है। अब ये जब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हम बात करें AMP GMP, ठीक है, ये जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जाएंगे तो वो फिर बना देंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स in a nucleic acid and it is made by joining of many nucleotides through the phosphodiester bonds, ठीक है। इनके दरमियान जो बॉन्ड होगी वो होगी फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये जब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करते जाएंगे तो ये बना देंगे न्यूक्लिक एसिड। तो सिंपल सा है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, एक न्यूक्लियोसाइड है। अक्सर देखो ये आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ये क्वेश्चन इसमें से काफी दफा आया हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। ये सबसे इजी भी है क्वेश्चन और ये पहले तो बहुत ही दफा आया हुआ है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। अब जी डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है ना। एक तो नाइट्रोजनस बेसिस हैं और एक इनके डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि इनसे और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जी जो बने हुए हैं। बिसाइड्स फॉर्मिंग न्यूक्लिक एसिड फॉलोइंग आर द डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। Adenine also provide high energy phosphate compound ATP and ADP। देखो एडेनिन से हमने AMP तो पढ़ा है ना, तो एडेनिन से ATP भी मिल रहा है और ADP भी मिल रहा है, अभी हमने बात की थी। इसी तरह जो कोएंजाइम्स हैं जिनमें एडेनिन बेस यूज होती है
उनका नाम लिखा हुआ है NAD, NADP, FAD, ठीक है, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट, ठीक है। तो निकोटिनामाइड एडेनिन जो है उसमें अब एडेनिन आ रहा है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये एडेनिन का डेरिवेटिव है। इसी तरह से सेकेंडरी मैसेंजर भी एडेनिन बना रहा है। ये समझ लो कि दीज आर द शॉर्ट फंक्शंस ऑफ एडेनिन। अब कभी आ जाए सवाल के व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडेनिन बेस, ठीक है, तो फिर हम दोनों में ये चीज लिख सकते हैं कि एडेनिन जो है वो ADP और ATP बना रहा है, FAD बना रहा है, NAD बना रहा है, NADP बना रहा है। इसके अलावा जो है सेकेंडरी मैसेंजर भी बना रहा है कैंप, ठीक है। कैंप का मतलब ये है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अब देखो उसमें एडिनोसिन आ गया ना, यानी कि ये भी एडेनिन का डेरिवेटिव है। तो ये हैं जी फंक्शंस एडेनिन के। इसी तरह से ग्वानिन, ग्वानिन भी हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है जैसे ATP है, और ये भी GMP GTP वगैरह बनाता है जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। तो ये इसका फंक्शन है ग्वानिन का। इसके अलावा ये सेकेंडरी मैसेंजर भी बना रहा है साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट CGMP, ठीक है। कैंप तो हमने पढ़ा है ना, CAMP कैंप। CGMP जो है ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है और ये बना रहा है ग्वानिन। तीसरा है जी थायमिन, ठीक है। तो थायमिन के डेरिवेटिव्स उन्होंने कहा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा बॉडी में उनका कोई यूज नहीं होगा, इस वजह से दे हैव रिटन के इसके जो डेरिवेटिव्स हैं दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है जी साइटोसिन। साइटोसिन ऑल्सो प्रोवाइड phosphate compound, for example cytosine triphosphate CTP, ठीक है। तो CTP जो है और CDP जो है जी दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन एंड सेफेलिन्स। जो लिपिड्स है ना हमारे हमने किए थे, सेफेलिन है लेसिथिन है, उनकी सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है। तो ये जाहिर है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से यूरासिल। यूरासिल की इम्पोर्टेंस ये है कि UDP ग्लूकोज जो है जी ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये हम आगे मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। UDP ग्लूकोयूरोनिक एसिड हेल्प्स इन द detoxification of benzoic acid and many other substances, ठीक है। तो यूरासिल एक तो UDP ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, यूराडिन डाइफॉस्फेट, जो कि ग्लाइकोजन की पाथवे में हेल्प कर रहा है जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है ग्लूकोज से। दूसरा जो है ना UDP जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड है वो ग्लूकोयूरोनिक एसिड हमने पढ़े हुए हैं, यूरोनिक एसिड जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े थे, ठीक है। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड बन जाते हैं। तो UDP ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा है। ये फायदा है जी यूरासिल का। दीज थायमिन एज विटामिन B1 यूज होता है। नहीं बेटे, जो थायामीन है ना ये नाइट्रोजनस बेस जो है ना थायामीन, ये और चीज है, और जो विटामिन B1 है ना वो और चीज है। जो थायामीन है ना उसके स्पेलिंग है THIAMINE, और जो ये थायमीन है THY, ठीक है। तो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द विटामिन, ठीक है। वो विटामिन B1 को हम कहते हैं थायामीन THIAMINE, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस इज अनदर थिंग and vitamin as is an another thing. Another function of UDP glucose is in the development of the nervous tissues. प्यूरिन सिंथेसिस और pyrimidine सिंथेसिस लिखा भी होगा कि इनके सिंथेसिस के जो स्टेप्स है ना वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
Body does not require purines in the diet because it can be synthesized in the body from the products of protein and carbohydrate metabolism. आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी डाइट से तुम लोग प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स लो, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ये बन जाती हैं जब प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है तो प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स दोनों बॉडी को मिल जाती है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि जो स्टेप्स हैं प्यूरीन बायोसिंथेसिस के, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पिरिमिडीन्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी को ये नहीं चाहिए, हमें ये ज़्यादा अमाउंट में लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स जो हैं ये यूरिक एसिड कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन मीट में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और जब क्योंकि प्रोटीन भी नाइट्रोजनस कंटेनिंग फूड है ना, तो जब प्रोटीन टूटता है बॉडी में, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो फिर हमें प्यूरीन्स वैसे ही मिल जाती हैं, पिरिमिडीन्स भी मिल जाती हैं। इस वजह से स्पेशली इसको अलग से किसी भी डाइट में लेने की एज सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अदील ने पूछा है सेकेंडरी मैसेंजर का फंक्शन, तो अदील आई वांट टू मेक इट क्लियर, सेकेंडरी मैसेंजर का काम ये होता है कि ये हार्मोन्स का काम करते हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन्स तो नहीं होते, बट दे प्रोसीड द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि डायरेक्टली एक्ट नहीं करते, वो हमारी बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है, जो अमाइन हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायरॉक्सिन, ठीक है। ये खुद से अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट नहीं करते, और ये बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देते हैं कि जो हार्मोन का काम है अब वो सेकेंडरी मैसेंजर करे। इसके अलावा कैल्शियम भी हमारी बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन वगैरह करवाता है। तो हार्मोन्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हार्मोन्स का काम कर रहे हैं। अब जी डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पहले भी बताया था कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें जो बेसिस हैं वो 3 हैं, एडेनिन, गुआनिन, 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज है, यूरासिल इसमें प्रेजेंट नहीं है। In DNA, the two strands are joined together throughout the whole length of the molecule. The two strands are complementary to each other and they run in the opposite direction. ये हम तुम लोग पहले से भी पढ़ते हो कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 इसके स्ट्रैंड्स होते हैं। जो 2 स्ट्रैंड्स है ना, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दोनों जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बट दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल नहीं होते, ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि शायद तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हो कि डीएनए के एक स्ट्रैंड को नाम देने के लिए वो 5 प्राइम कह देते हैं और दूसरे को 3 प्राइम कह देते हैं, एक एंड को, ठीक है। डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसके 2 टर्मिनल हैं, एक 5 प्राइम टर्मिनल, 5 डैश टर्मिनल, एक 3 डैश टर्मिनल। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा ना, जहां पे पहले का 5 वाला एंड होगा वहां पे दूसरे का 3 वाला एंड होगा, यानी कि दोनों तरह के होंगे एंटी पैरेलल। ये मतलब है जी एंटी पैरेलल का। अब जो ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग बिटवीन द two strands occurs between the purines and the pyrimidines and not between the purines themselves and pyrimidines themselves। मतलब ये है कि जो दोनों स्ट्रैंड के साथ ज़ाहिर बेसिस भी है ना, तो बेसिस आपस में पेयरिंग बना रही होती हैं।
तो जो पेयर बनता है वो एक प्यूरीन और एक pyrimidine का बनता है। ऐसा नहीं है कि एक प्यूरीन और दूसरी प्यूरीन आपस में पेयर बना ले और एक pyrimidine और दूसरी pyrimidine आपस में पेयर बना ले। ठीक है, रूल को हम देयर इज अ रूल विच इज कॉल्ड एज द पेयरिंग रूल। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने ये दिया था पेयरिंग रूल, और पेयरिंग रूल के मुताबिक ये है कि adenine will always make a pair with the thiamine and guanine will always make a pair with the cytosine। तो A और T हमेशा पेयर बनाएंगे और G और C हमेशा पेयर बनाएंगे। ठीक है जी, तो A और T जब पेयर बनाएंगे तो जाहिर है इनके दरमियान में कोई ना कोई बॉन्ड्स होंगी। तो जो बॉन्ड है वो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट, दे स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ए और टी के दरमियान देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और व्हेन guanine and cytosine will attach with each other there are three hydrogen bonds between G and C। ठीक है, G और C के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और A और T के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, आई एम अ बिट स्लो टुडे क्योंकि आज सुबह उठते ही जो है ना वो बस बहुत ज़्यादा रोज़ा और गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा था, लेकिन क्योंकि रमज़ान है जाहिर है हम बार बार ये भी नहीं कह सकते कि प्यास लग रही है और इस तरह से, तो दैट्स वाई आई एम बिट स्लो। बहुत ज़्यादा ही आज जो है ना सिचुएशन थी ऐसी मैंने कहा चलो आराम आराम से जो है ना वो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं ताकि ज़्यादा हलक वगैरह खुश्क ना हो, बिकॉज अभी तो दिन का स्टार्ट है एंड देयर इज़ अ होल डे। yesterday it was very better but today I don't know why I'm a bit slow, बट अगर तुम लोगों को आवाज़ आ रही है तो फिर इंशाल्लाह लेक्चर अपना हम आराम से कवर कर ही लेंगे। अच्छा, अब एक रीज़न कि क्यों ऐसा है कि एडेनिन और एडेनिन पेयर नहीं बनाते, क्यों ऐसा है कि साइटोसिन और साइटोसिन पेयर नहीं बनाते, या क्यों ऐसा है कि एडेनिन दूसरे साइटोसिन के साथ क्यों नहीं पेयर बना रही। ठीक है, या गुआनिन एडेनिन के साथ क्यों नहीं पेयर बना रही। ठीक है जी, तो क्यों ऐसा है। अच्छा जी, ये रेस्ट कौन कह रहा है जी, रेस्ट करें। तो रेस्ट तो हमने जो है ना अब अपना लेक्चर तो लेना है इंशाल्लाह ना, बिकॉज दे आर द ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें छुट्टी का सीन बहुत कम है। वैसे लाइव क्लासेस हो तो चलो तुम लोग क्लास में कुछ भी कर लेते हो, बट ऑनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली एक हमने पूरा पोर्टल बनाया हुआ है और मैनेजमेंट सारे बंदे इन्वॉल्व हैं, तो इसमें फिर पहले से वी हैव टू अरेंज सम अदर टीचर फॉर यू गाइस ना। तो वो फिर इसको रिक्वेस्ट करो उसको तो बंदा खुद ही ले ले, कोई ऐसा नहीं है इशू। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही थी हमारी वेबिनार की ऑनलाइन क्लासेस, ये तो बस आज है आज भी इंशाल्लाह देखते हैं अब लेक्चर को अपने। अच्छा जी, अब I was telling you कि why it is so that only adenine and thymine is making a pair or guanine and cytosine is making a pair। एडेनिन क्यों नहीं बना देती पेयर। तो ऐसा है, ये देखा गया है कि जब रिसर्च से कि जब दो एडेनिन ने पेयर बनाना चाहा तो हमारी बॉडी में सेल में उनके दरमियान डिस्टेंस इतना कम था कि दोनों ओवरलैप हो गई, उनके दरमियान कोई बॉन्ड ना बन सकी। ठीक है, दोनों प्यूरीन्स और प्यूरीन्स कोई भी, चाहे साइटोसिन और साइटोसिन हो चाहे थायमीन और थायमीन हो, ठीक है, when two similar purines they want to make a bond, उनके दरमियान डिस्टेंस इतना कम था कि they will overlap with each other। और अगर हम एक प्यूरीन का एडेनिन का दूसरे साइटोसिन से पेयर बनाएं
तो उनके दरमियान जो है ना फासला इतना ज़्यादा था कि बॉन्ड बनती नहीं थी, या तो फिर अगर बनती थी तो एक बनती थी। तो अगर वन बॉन्ड बनेगी तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉट इनफ टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, बिकॉज डीएनए का स्ट्रक्चर है हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखो स्प्रिंग को जब हम छोड़ देते हैं तो वापस अपनी असल हालत में आ जाता है ना। जैसे हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था अल्फा हेलिक्स होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कौन सी बॉन्ड थी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर में भी जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हमें बेस्ट पेयरिंग जो है ना वही होती है जिसमें आपकी बॉन्ड ज्यादा बने, जो कि स्ट्रक्चर आपका स्टेबलाइज इजीली हो जाए। तो जो बेस्ट बॉन्डिंग बन रही थी वो बन रही थी बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन 2 बॉन्ड्स एंड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन 3 बॉन्ड्स। ठीक है, और इस रूल को हम कहते हैं पेयरिंग रूल। अब वेटेज में, हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन आया है कि वेटेज में ये इक्वल है। हाँ जी, जितना डीएनए में हिस्सा परसेंटेज एडेनिन की है ना, फिर उतनी थायमिन की भी है, जितनी गुआनिन की है उतनी साइटोसिन की भी है। वेटेज में दे आर इक्वल। Purine and pyrimidine, which joins together to form the DNA, is known as the complementary pair of bases. ठीक है, अब ये एडेनिन और थायमिन जो हैं they are called as complementary pair of bases. Adenine and thymine form one complementary pair and guanine and cytosine एक पेयर एडेनिन और थायमिन बना रहा है और दूसरा पेयर गुआनिन साइटोसिन बना रहा है। DNA contains the genetic information that gave rise to chemical and physical properties to the living organisms. And we all know that genes are the parts of the DNA molecule. ठीक है, DNA molecule, a small segment of DNA is called as genes. Genetic information is contained in one of the two strands of the DNA molecule which is termed as the sense strand. अच्छा, डीएनए के दो स्ट्रैंड है ना, तो जिस स्ट्रैंड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे सेंस स्ट्रैंड, और उसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड है फिर हम उसको कहेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है जी, जिस स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन है, बिकॉज डीएनए कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ना, जो भी सेल की एक्टिविटीज हैं सारी सारी इंफॉर्मेशन तो सॉरी डीएनए में है ना, कौन सी प्रोटीन्स बननी है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमारा डीएनए लेके आता है ना। तो दोनों में से जो स्ट्रैंड इंफॉर्मेशन कैरी करता है दैट इज सेंस स्ट्रैंड एंड सेकंड स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड। नाउ जी रेप्लिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस। देखो, making a copy of the DNA basically is called as replication. DNA अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना सकता है, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं replication. It occurs during the synthesis phase of the cell cycle. जब सेल डिवाइड होगा तो जाहिर है कि सेल का डीएनए भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, तो हर डॉटर सेल में डीएनए भी तो आएगा ना। तो व्हेन सेल डिवाइड्स तो सेल का जो है डीएनए वो भी डिवाइड करता है। Replication is catalyzed by the complex of the proteins that includes the enzyme DNA polymerase. अब मेरे ख्याल में इस किताब में रेप्लिकेशन का पाथवे नहीं हुआ है, आई विल चेक। रेप्लिकेशन, हाँ जी, इसमें उन्होंने रेप्लिकेशन जो है वो नहीं दिया हुआ है, रेप्लिकेशन का पाथवे। तो replication pathway is not given basically, but I want to tell you that replication is making of the identical copy of the
DNA, ठीक है। और इसके लिए डेफिनेटली वी रिक्वायर proteins, we require certain enzymes so that the DNA carries out its process of the replication. And the major enzyme of the replication is DNA polymerase. DNA polymerase is one of the major enzyme of the replication. And other enzymes of the replication is DNA helicase, DNA गायरेज, लाइगेज, ठीक है। इनके अब काम क्या हैं, देखो पॉलीमरेज का काम ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करेगा तो फिर वो ज्वाइन करेंगी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइगेज और फिर बनेगा ना दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का जो पाथवे है ये मेरे ख्याल में हम क्लास में इंशाल्लाह बोर्ड पे डिटेल में करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन पहले भी तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। आम लफ्जों में डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से जब हमारी बॉडी में मैसेंजर आरएनए बनता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। The process is catalyzed by the RNA polymerase, ठीक है। प्रोसेस जो है वो उसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड सिंथेसिस। और क्योंकि अब देखो मैसेंजर आरएनए एक टाइप है आरएनए की, दूसरी टाइप तुम लोगों ने भी सुनी होगी ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स ना। तीनों टाइप के लिए फिर हमारे जो एंजाइम्स होंगे ना वो होंगे डिफरेंट। तो अगर तो मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज 2। अगर राइबोसोमल आरएनए बन रहा है तो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज 1। और अगर ट्रांसफर आरएनए बन रहा है तो इसका मतलब है आरएनए पॉलीमरेज 3. So we have 3 different enzymes for the 3 different types of the RNA molecules. Mutations after replication changes in DNA molecule. अगर DNA के मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज आ रही है ना, उसका सीक्वेंस को चेंज हो रहा है, उसकी बेसिस एडेनिन है गोनिन है, एडेनिन की जगह गोनिन आ गई, गोनिन की जगह साइटोसिन, एनी चेंज इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन. These changes result in the permanent alteration of the base sequence in the daughter DNA. देखो अगर कोई भी चेंज आ जाता है ना डीएनए में तो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता। अगर कोई बेस रिमूव हो गई हुई है तो जाहिर है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा से कोई उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई मिस मैचिंग हो गई है, मिस पेयरिंग हो गई है तो उसकी वजह से कोई ना कोई फिर डिजीज हो जाएगी। जाहिर है जो जेनेटिक डिजीजेज हैं वो इसलिए तो कॉज होती हैं, कोई डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया या प्रोटीन के सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया। तो कोई भी अगर चेंज आता है तो ये परमानेंट होता है, दैट इज नॉट टेम्परेरी। इसके बाद है जी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की भी टाइप्स है ना। पॉइंट म्यूटेशन, इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस फॉर अनदर। वही एडेनिन की जगह अगर गोनिन ने ले ली है तो ये हो जाएगी पॉइंट म्यूटेशन. इंसर्शन, इट इज द एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स विद इन अ डीएनए सीक्वेंस। के डीएनए में कोई एडिशनल बेस आके अटैच हो गई है, उसकी जरूरत तो नहीं थी बट एडिशनल ऐड हो गई है. और डिलीशन का मतलब ये है कि कोई बेस 1 या 2 या कोई भी डीएनए सीक्वेंस से बेस जो है वो डिलीट हो गई है. तो अगर तो मिस जो है मिस पेयरिंग हो जाए यानी कि एक की जगह पे बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो पॉइंट म्यूटेशन. अगर जो है जी एडिशन हो जाए वन और मोर बेसिस की तो इंसर्शन. और अगर किसी बेस की डिलीशन हो जाए तो दिस इज रिमूवल हो जाए तो दिस इज कॉल्ड एज द डिलीशन. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द म्यूटेशंस व्हिच आर अकरिंग इन द डीएनए मॉलिक्यूल. उसके बाद आ जाओ जी आरएनए की तरफ.
अब डिफरेंसेस हमने याद रखते जाना है, आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो डीएनए वाज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए कहाँ प्रेजेंट था, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, और डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करना फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास नहीं करता, ठीक है। तो ये हम जो है ना ज्यादा मेजर इसका जो रोल है वो है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब जी इट इज मेड इन द न्यूक्लियस फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए बाय द एक्शन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए जो है वो डीएनए से बन रहा है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा कि मैंने अभी बताया। आरएनए कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। इसमें थायमिन नहीं होती विच इज द बेस ऑफ द डीएनए। ये डिफरेंस है कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होती है और प्लस फॉस्फेट ग्रुप। बाकी शुगर इसमें राइबोज होगी। द शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज एंड द शुगर विच इज प्रेजेंट इन आरएनए इज राइबोज। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइज शुगर होती है, उसमें डीऑक्सीडाइज शुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है, बेसिस का डिफरेंस है वो भी आपने पढ़ लिया। मैसेंजर आरएनए टेक्स द मैसेज फ्रॉम डीएनए टू ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए मैंने बताया था तुम लोगों को 3 टाइप्स की आरएनए है, लेकिन जो है ना एक और आरएनए भी है विच इज राइबोजाइम। ठीक है, चौथा आरएनए भी है विच इज कॉल्ड एज द राइबोजाइम। तन इसमें लिखा है कि नहीं, बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिकली आरएनएज। राइबोजाइम काफी दफा शायद तुम लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। सो जी थायमीन इज नेवर प्रेजेंट इन आरएनए। थायमीन कभी भी आरएनए में नहीं होगी, इसकी जगह पे यूरासिल होगी। अब लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स, ज्यादा बुक्स में यही है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब एमआरएनए का काम ये है कि इट टेक्स द मैसेज फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, और only one strand of the DNA serve as a template for the synthesis of the messenger RNA। जब डीएनए से आरएनए बनेगा ना तो एक ही स्ट्रैंड जो है ना वो एमआरएनए बनाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों स्ट्रैंड्स 2 आरएनए बना रहे हैं। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन उसका एक स्ट्रैंड जो होगा, जाहिर है जो सेंस स्ट्रैंड है उसमें इंफॉर्मेशन होती है तो वो आरएनए बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 स्ट्रैंड्स हैं तो 2 आरएनए बन जाएंगे। ठीक है, तो ओनली 1 आरएनए इज फॉर्म्ड। ट्रांसफर आरएनए ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्युबल आरएनए भी, इसको हम एस आरएनए भी कहते हैं ट्रांसफर आरएनए को। इट रीड्स द मैसेज एंड ट्रांसफर्स द अमीनो एसिड्स टू द प्रॉपर साइट ऑन द राइबोसोमल आरएनए। देखो, जब हमारी बॉडी में आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमीनो एसिड्स। जाहिर है जब अमीनो एसिड्स ज्वाइन करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी ना। अब अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो हो रही है साइटोप्लाज्म में, तो उसके लिए हमें अमीनो एसिड्स चाहिए। तो अमीनो एसिड्स को जो है ना अकॉर्डिंग टू द डीएनए इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर आरएनए लेके आता है न्यूक्लियस से अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में, ताकि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, तो इस वजह से हमारी बॉडी में 20 ट्रांसफर आरएनएज होते हैं। ठीक है, हर ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड को कैरी करता है, उसको लेके आता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। ट्रांसफर आरएनए इन द राइबोसोम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesize protein from the amino acids brought by the transfer RNA। ठीक है, जो राइबोसोमल आरएनए है ना, क्योंकि ribosomes are also the part of the protein synthesis process। ribosomes are the small organic
मॉलिक्यूल्स, स्मॉल ऑर्गेनिक बॉडीज इन आवर साइटोप्लाज्म। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, राइबोसोम्स 70s भी होते हैं, 30s भी होते हैं, स्मॉल बॉडीज होती हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, जिनके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हमने एफएससी में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो इसमें से हमने डेफिनेशन की हद तक करना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। लेकिन तीनों आरएनए के फंक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए मैसेज ज़ाहिर ले रहा है डीएनए से, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को कैरी कर रहा है, हर अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए है जो कि उसको लेके आता है साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोमल आरएनए के ऊपर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ डीएनए जितने ज्वाइन हो जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जिट एग्जिट अमाइनो एसिड आता है, यानी कि यहाँ स्टॉप कोडॉन, कोडॉन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, जिसकी वजह से प्रोसेस जो है वो फिर रुक जाता है। ठीक है, एक इनिशिएट करता है स्टार्ट कोडॉन और एक स्टॉप करता है स्टॉप कोडॉन। आगे आते हैं कोडॉन, तो इंशाल्लाह वो पढ़ते हैं। इसके बाद है जी राइबोजाइम के बारे में मैं बताने लगी हूँ कि एक चौथा आरएनए भी है जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम। इसकी नेचर तो है आरएनए की, लेकिन इसका जो काम है ना वो एंजाइम्स वाला है, राइबोजाइम। ठीक है, काम इसका एंजाइम्स वाला है कि ये डीएनए आरएनए की ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए को चॉप डाउन करवाता है, उन पे एक्ट करता है राइबोजाइम। और नेचर इसकी न्यूक्लिक एसिड है, काम इसका एंजाइम्स वाला है। तो इसको हम कहते हैं फोर्थ आरएनए राइबोजाइम। Translation is the process by which genetic information contained in DNA is transferred to the ex- is translated to the expressed by RNA, resulting in the synthesis of the proteins. ट्रांसलेशन देखो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि फिर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स फ्रॉम द आरएनए इज ट्रांसलेशन, and the formation of the messenger RNA from DNA is called as transcription. तो जी ये है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब हम जी प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में मेरे ख्याल में 10 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, और इसके बाद फिर हम ये पढ़ते हैं कि जी प्रोटीन सिंथेसिस हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, बट आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक ऑफ द 10 मिनट्स। इसके बाद जो है ना जी बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की हमने सिर्फ जो है ना वो करनी है डेफिनेशंस ओनली। वी वांट टू डू द डेफिनेशंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, क्योंकि ऐसा जिसका नहीं है ज़्यादा कोर्स में ना, इस वजह से। तो जी मूविंग टुवर्ड्स 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, राइबोसोमल आरएनए के बारे में मैं ब्रेक के बाद तुम लोगों को बताती हूँ या लिख ही देती हूँ। ठीक है।
G class, we are finally back with a after a short break. I hope you guys will be there. Are you there? जी वापस आ गए हैं सब लड़कियों लड़कों. So that we may move forward towards the process of the protein synthesis. Okay, जी. Protein synthesis is a complex process which is regulated by DNA. जाहिर है देखो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ना बॉडी में उन सब की रेगुलेशन तो डीएनए करवा रहा है because that is the major information containing molecule present in the nucleus of every cell. It takes place in the ribosomes present in the cytoplasm. जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये हम सबको पता है जिस ऑर्गेनेली पे होता है. ठीक है, देयर आर सेल ऑर्गेनेलीज. पता है ना कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी होती है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि राइबोसोम्स. ठीक है, तो राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके ऊपर होता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस. नाउ 4 ATPs are required and therefore for each amino acid added to the elongated protein chain. अब ज़ाहिर है इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए तो 4 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं जी वो रिक्वायर होते हैं जो कि इसको इनिशिएट करने के लिए एनर्जी देते हैं. Then DNA transmits the information of the protein synthesis to the साइटोप्लाज्म थ्रू द मैसेंजर आरएनए. तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, एक डायग्राम सी होती थी प्रोटीन सिंथेसिस की. ठीक है, अब इसमें तो थ्योरी है तो सिर्फ ज़्यादा यही है कि डीएनए ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ज़ाहिर है मैसेंजर आरएनए. ठीक है, each codon is specific for a specific amino acid required for the protein synthesis. अब डीएनए ज़ाहिर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देता है? डीएनए तो कोडोन्स की फॉर्म में ही देता है ना इंफॉर्मेशन. ठीक है जी, तो कोडोन्स आर बेसिकली इंफॉर्मेशन जो हमें डीएनए दे रहा है. देखो जीएसी अगर कह रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाली बेसिस आए. जीएसी का मतलब तीन अल्फाबेट्स का कोडोन होता है. ठीक है, जैसे यूएजी, जीएसी. अब जीएसी का मतलब है एक गोनिन, एक एडेनिन और एक साइटोसिन. ये 3 बेसिस ज्वाइन हो तो इस तरह की जब इंफॉर्मेशन डीएनए देता है तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप के अमाइनो एसिड्स आए जो कि इस तरह की प्रोटीन को सिंथेसाइज कराएं. इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये अमाइनो एसिड्स आए. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड आ जाए या दूसरा आ जाए तो ये इंफॉर्मेशन सारी हमें दे रहा है डीएनए. प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स विद अ स्टार्ट कोडोन एंड एंड्स विद अ स्टॉप कोडोन. ज़ाहिर है एक इनिशिएटर कोडोन होता है जो कि सिंथेसिस को स्टार्ट करता है और जब नेचुरली हमारी बॉडी में स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो ये जितनी प्रोटीन बननी थी बन जाएगी स्टॉप कोडोन. वरना तो प्रोटीन्स बनती नहीं बॉडी में ना, तो देयर इज अ स्टॉप कोडोन. और ज़रा वही प्रोटीन्स बनती हैं ज़रा जिनकी ज़रूरत होती है बॉडी में. डीएनए वही प्रोटीन्स बनाएगा ना जिनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी में. Once the anticodon on the transfer RNA reads the codon on the messenger RNA, messenger RNA के ऊपर होता है codon. ठीक है, वो कैरी कर रहा है codon को, information को. और जो ट्रांसफर आरएनए बेसिकली इट कंटेन्स द एंटीकोडोन. ट्रांसफर आरएनए कंटेन्स द एंटीकोडोन which is complementary to the codon of the messenger RNA. I'm repeating it again that messenger RNA carries the information from the DNA. ठीक है, मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन ले रहा है और जो इंफॉर्मेशन होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री है जी एंटीकोडोन विच इज प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफर आरएनए. अब एंटीकोडोन और कोडोन का मतलब मैं दोबारा बताने लगी हूँ कि कोडोन का मतलब ये है कि सपोज वहाँ पे एडेनिन बेस है तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी बेस होनी चाहिए? थायामीन ना, क्योंकि ए और टी हमेशा पेयर बनाते हैं. तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो कोडोन की पहली बेस होगी वो होगी थायामीन. ठीक है, तो कोडोन एंड एंटीकोडोन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. Ribosomal RNA then incorporates the specific amino acid in the growing peptide chain and
The process is called as the translation of the genetic codon. अब राइबोसोमल आरएनए इज बेसिकली द प्लेस, वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ये है कि इट इज कैरिंग द मैसेज फ्रॉम द डीएनए। ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन है कि इट इज कैरिंग द specific amino acid according to the message which has been given by the DNA। जो डीएनए ने मैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये अमाइनो एसिड जो है वो कैरी करेगा, लेके आएगा, ठीक है। और इस अमाइनो एसिड को जो है ना वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, और पूरी चेन बनेगी जिसको हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और ये चेन कब तक बनती रहेगी, जब तक कि स्टॉप कोडॉन नहीं आता, ठीक है। वंस द स्टॉप कोडॉन हैज बीन रीच्ड, the process of the protein synthesis will be stopped, will be overed। जितनी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होना था, once the required protein is synthesized completely, stop codon is sent which separate the protein synthesis, ठीक है, ताकि उसको सेपरेट कर दे जितनी बन चुकी है प्रोटीन्स। अब कोडोन्स क्या हैं जी और एंटी कोडोन्स क्या हैं। कोडोन्स इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। These are the messages or information on the messenger RNA coded by the DNA for a specific amino acid required for the protein synthesis। तो simply जो codons हैं they are the basically information which is present on the mRNA। और ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि हमें डीएनए कोड करके दे रहा है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए होती है कि कौन से अमाइनो एसिड ने अब आना है चेन में, ठीक है, अटैच होना है और प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। वन कोडोन इज फॉर वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, ठीक है। डीएनए जो इन्फॉर्मेशन देता है ना कोडोन्स की फॉर्म में, तो 3 वर्ड्स का जो एक 3 लेटर इनका एक कोडोन होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए होता है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट अमाइनो एसिड वी हैव अनदर कोडोन, ठीक है। और ये देखो कोडोन जो है वो 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, यूयूसी, कोई भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये जी कोडोन्स जो हैं दे आर द मेड अप ऑफ द 3 नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली। नो जी, अब ये देखो टेबल में डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं विच इज वेरी कॉमन रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड के आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है, आरएनए साइटोप्लाज्म में है, डीएनए जो है दैट इज इन द न्यूक्लियस, वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता। और आरएनए जो है उसमें प्यूरीन्स, एडेनिन और गोनिन है। डीएनए में जो प्यूरीन्स हैं वो भी एडेनिन और गोनिन ही हैं। आरएनए में जो पिरिमिडीन्स हैं यहाँ पर डिफरेंस आएगा, जो पिरिमिडीन्स हैं वो साइटोसिन और यूरासिल हैं। और डीएनए में कौन कौन सी हैं जी, साइटोसिन और थायमिन। RNA contain ribose, DNA contain deoxyribose, और phosphoric acid is present in both the molecules RNA and DNA। वो दोनों में है जी। To start protein synthesis, the first codon is always AUG, which codes for the methionine। अब ये याद रखना है कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो सबसे पहला कोडोन जिसको हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं वो हमेशा होगा AUG। और AUG हमेशा एक अमाइनो एसिड को कैरी करता है जिसका नाम है मेथियोनिन, ठीक है। तो हमें एमसीक्यू में आ सकता है कि विच इज द स्टार्ट कोडोन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो स्टार्ट कोडोन हमेशा जी रोशना कंवल, मैं दोबारा बता रही हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस इज वेरी सिंपल। तुम लोग अपनी एफएससी की बायोलॉजी की बुक से भी कर सकते हो, वो ज्यादा समझ आएगी क्योंकि इसमें पिक्चर वगैरह कोई नहीं है इस किताब में। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है, लेकिन हमारे कोर्स का ऐसा जितना हिस्सा नहीं है, हमने न्यूक्लिक एसिड्स का चैप्टर करना है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की सिर्फ डेफिनेशंस वैसे हमने करनी है, लेकिन वैसे बताती चलूं प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है राइबोसोम्स पे। इसके लिए डीएनए मैसेज देता है मैसेंजर आरएनए को कि कौन सी प्रोटीन ने बनना है। मैसेंजर आरएनए कोडोन्स की फॉर्म में मैसेज लेके आती है, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि अमाइनो एसिड को पिक करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके आता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। क्योंकि अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो प्रोटीन बनेगी ना, और हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है। वी हैव 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो वी हैव 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो 20 ही ट्रांसफर आरएनए बॉडी में प्रेजेंट है। हर ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट कोडोन हमेशा जो पहला कोडोन होगा वो हमेशा होगा AUG।
ठीक है। और इसका मतलब ये है AUG का कि ये मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। अब ये जो कोडोन्स है ना 3 लफ्जों के, ये किसी ना किसी माइनो एसिड को कोड कर रहे हैं कि ये वाला माइनो एसिड आ जाए। तो पहला कोडोन जो है वो AUG वो ये कोड करता है कि मिथ्योनिन को ट्रांसफर RNA ले आए। ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो स्टॉप कोडॉन है, देखो वंस द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है, तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाना चाहिए, तो स्टॉप कोडॉन आएगा। अब स्टॉप कोडॉन जो है ना ये मैसेंजर RNA ही मैसेज कन्वे करेगा, लेके आएगा। और स्टॉप कोडॉन्स 3 तरह के हैं, UGA, UAA, UAG। इनमें से कोई भी अगर मैसेंजर RNA ले आएगा तो इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अब स्टॉप हो जाए, अब रुक जाए, और प्रोटीन जितनी भी बन चुकी है वो इससे सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे स्टॉप कोडॉन्स हैं। AUG स्टार्ट कोडॉन, UAG याद रख लो उसका ऑपोजिट स्टॉप कोडॉन। फॉर एग्जाम्पल, a protein of 150 amino acids require 150 codons और 450 bases between the start and stop codon। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोटीन है जिसमें 150 अमाइनो एसिड से, जाहिर है 50 अमाइनो एसिड से तो कम की कोई प्रोटीन ही ना होती। सो अगर कोई ऐसी प्रोटीन है विच कंटेन्स 150 अमाइनो एसिड्स, तो उसमें 150 अमाइनो एसिड्स को लाने के लिए जाहिर है जो है 150 कोडोन्स तो होंगे ना, मैसेजेस तो होंगे ना। तो 150 कोडोन्स का मतलब ये है कितनी बेसिस हो गई हैं, क्योंकि हर कोडोन में 3 बेसिस हैं, ऐसे ही है ना। UAG, UA, हर कोडोन 3 बेसिस से मिलके बना है। तो अगर 150 कोडोन्स हैं तो इसमें कितनी बेसिस हो जाएंगी, तो 150 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 450 बेसिस। Codons are carried by the messenger RNA which delivers them to the ट्रांसफर RNA। कोडोन्स को मैसेंजर RNA कैरी करता है, ठीक है, और फिर ये ट्रांसफर RNA को डिलीवर करती हैं कि ये जो है ना ये वाला मैसेज जो है ना ये आया है, और ये वाला स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है ना वो जाके लेके आओ, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस, इस तरह की प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होनी स्टार्ट हो जाए। अब ये कोडोन्स तो हमने पढ़ लिया, अब एंटी कोडोन्स क्या होता है। देखो मैसेंजर RNA के ऊपर हैं कोडोन्स, और मैसेंजर RNA को रीड किसने करना है, tRNA, ट्रांसफर RNA ने। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर होंगे हमारे पास एंटी कोडोन्स। So codons are always present on the messenger RNA and anticodons are present on the ट्रांसफर RNA। ठीक है, मैसेंजर RNA के ऊपर कोडोन्स प्रेजेंट हैं और ट्रांसफर RNA के ऊपर जो है वो एंटी कोडोन्स प्रेजेंट हैं। मैसेंजर RNA के ऊपर कोडोन्स और ट्रांसफर RNA के ऊपर एंटी कोडोन्स। Every codon on messenger RNA has its specific anticodon on the transfer RNA। ठीक है, उसी का ही स्पेसिफिक एंटीकोडोन होता है tRNA पे। एंटीकोडोन ऑल्सो हैव अ सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्टिव नाइट्रोजन बेसिस। ये तो अंडरस्टूड है कि कोडोन अगर 3 लेटर्स का है तो एंटीकोडोन भी 3 लेटर्स का ही होगा। ठीक है, तो जो एंटीकोडोन है ना वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। Anticodon has also a sequence of 3 consecutive nitrogen bases which are complementary to the codon present on the messenger RNA. Anticodons on the transfer RNA read the codons on the messenger RNA and transfer the specific amino acid to the ribosome for the protein synthesis. Hello. जी, सो वी हैव द कोडोन्स एंड द एंटी कोडोन्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं तुम लोग को बता रही हूँ, UAG है ना तो इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि यू के साथ कौन सी बेस है, यू के साथ एडेनिन है ना, ए के साथ टी है ना, और जी के साथ सी है, तो वो इसके ऑपोजिट होगा। तो कोडोन्स आर एंटी कोडोन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल RNA एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। हम सबको पता है कि राइबोसोम्स 2 चीजों से मिलकर बने हैं,
एक उसमें राइबोसोमल आरएनए है और साथ में एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स अटैच होती हैं. Ribosomes can reversibly undergo डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं जी वो अलहदा भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं प्रोटीन से. In humans, the associated form of the ribosomes during the protein synthesis have the value of ATS, and once the protein is released, ribosomes becomes dissociated into टू कंपोनेंट्स. ठीक है, जैसे ATS का अगर राइबोसोम है तो जैसे ही प्रोटीन रिलीज होती है तो राइबोसोम्स जो है ना वो अलहदा हो जाते हैं दो कंपोनेंट्स में, 40S वैल्यू एंड अदर 60S वैल्यू. ठीक है, तो दोनों की ये तुम लोगों ने FSC में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो राइबोसोम्स में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. राइबोसोम स्मॉल ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर राइबोसोम्स की वैल्यू 80S है तो जब प्रोटीन बन जाती है तो ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू है, सेडिमेंटेशन रेट होता है. ठीक है, राइबोसोम्स का 40S है, 60S है, 80S है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, 40S 60S 80S. ठीक है, हमें बस पता होना चाहिए राइबोसोम्स क्या है. इस चैप्टर में राइबोसोम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं. हम बस इसका ये वाला पार्ट पढ़ेंगे. राइबोसोम्स हैव टू बाइंडिंग साइट्स, दो इसकी बाइंडिंग साइट होती हैं, एक ए साइट और एक पी साइट. ठीक है, ए साइट को हम कहते हैं अमाइनो एसाइल साइट और पी साइट को हम कहते हैं पेप्टिडाइल साइट. ए साइट स्टार्ट वाली साइट भी होती है. ठीक है, ये अमाइनो एसिड के साथ जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेके आ रहा है ना उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, उसके साथ बाइंड करेगी, विच इज देन ट्रांसफर टू द पी साइड. पी साइड का मतलब ये है कि वेयर लेंथनिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन टेक्स प्लेस. मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, ए साइड और पी साइड. राइबोसोम्स का हमें पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स ट्रांसफर आरएनए और प्रोटीन से बने हैं और जो राइबोसोम्स हैं जी ये एसोसिएटेड फॉर्म में और डिसोसिएटेड फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं. और जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन रिलीज हो जाती है तो राइबोसोम नॉर्मली दो कंपोनेंट्स में डिसोसिएट कर जाता है. ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है दो कंपोनेंट्स में डिसोसिएट कर देगा वंस इट रिलीज द प्रोटीन्स. और राइबोसोम के ऊपर दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक ए साइट और एक पी साइट. ए साइट को हम अमाइनो एकाइल साइट कहते हैं. इसका मतलब ये स्टार्टिंग साइट भी समझ लो कि जिसपे अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है ना वो बाइंड करेगा. और जो पी साइट है ना उसको हम जी क्या कह रहे हैं, उसको हम पेप्टिडाइल साइट भी कह रहे हैं. पेप्टिडाइल साइट का मतलब ये है कि जहाँ पे अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं. ठीक है, तो जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसको हम पेप्टिडाइल साइट भी कह रहे हैं. So there are the two sides basically on the surface of the ribosomes, A site and P site. अब ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है ना ये जो है दैट इज नॉट द बेसिकली पार्ट ऑफ द कोर्स. ठीक है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स आफ्टर द प्रोटीन्स की जो मॉडिफिकेशन ज़ाहिर है जब वो बन जाती हैं तो फिर उसमें जो मॉडिफिकेशन होती है. बट ये हमने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वाला जो चैप्टर है ना ये हमने नहीं करना. और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है ना दैट इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. तो हमने जी न्यूक्लिक एसिड्स का मेटाबॉलिज्म भी नहीं करना, हमने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी जो है ना वो हमने नहीं करना. हाँ, इसमें जो ये एक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की जो डिजीजेज है ना गाउट वगैरह ये हम कर सकते हैं बिकॉज डिजीजेज हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन के लिहाज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है. गाउट वगैरह हमने न्यूट्रिशन में भी कर चुके हैं. हम यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म की डिजीज है. ठीक है, हाइपरयूरिसीमिया मेरे ख्याल में हमने किडनी डिजीजेज में ये की है गाउट, तो इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म की डिजीजेज हैं क्योंकि प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स मैंने तुम लोगों को बताया था कि प्यूरीन्स और जो पिरिमिडीन्स है ना दे आर बेसिकली इम्पॉर्टेंट
दे आर बेसिकली द लीडिंग कॉज ऑफ द यूरिक एसिड। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स इसीलिए लिखा भी हुआ था कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा नहीं लेने, बॉडी में ऑलरेडी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स ऑलरेडी बनते हैं, तो डाइट में लेने की एज सच ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जी गाउट को पढ़ लेते हैं। गाउट जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव accumulation ऑफ द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जब हमारे जॉइंट्स में, ठीक है, डेपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, नकल्स एंड बिग टो। नकल्स तुम लोगों को पता है कि जो आपकी फिंगर्स हैं, देखो ये आपके नकल्स हैं, ठीक है, जिसको मैं अभी पॉइंट आउट कर रही हूँ, फिंगर्स हैं ये, और दीज आर द सेंटर में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, दीज आर द नकल्स, ठीक है। नकल्स में और हमारे जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डेपोजिशन हो जाती है इनकी, तो ये आर्थराइटिस कॉज करते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द वेरी पेनफुल कंडीशन, ठीक है। इसमें दर्द जो है ज़रूरी नहीं है कि लेवल बढ़ जाए फिर ही दर्द हो, दर्द पहले भी होना शुरू हो जाती है, लेवल हो सकता है ब्लड प्लाज्मा में बाद में बढ़े, ठीक है। लेवल तो आपको ब्लड में ही देगा ना, जो आपके जमा हो गए हैं इधर नकल्स में, जॉइंट्स में, कार्टिलेज में जो जमा हो गई है, वो तो पेन पहले ही कॉज कर देगी। तो अकोमुलेशन ऑफ द मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन कार्टिलेज, टेंडन्स, सॉफ्ट टिश्यूज इज नॉन एज द टॉफाई। तो ओवरऑल तो डिजीज को हम गाउट कहते हैं, लेकिन ये जो जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपकी कार्टिलेज में, बोन्स में, टेंडन्स में, सॉफ्ट टिश्यूज में, ठीक है, बोन्स में तो नहीं होते लेकिन टेंडन्स में, सॉफ्ट टिश्यूज में, इसको हम स्पेसिफिक एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी हुई है जिसको हम कहते हैं टोफाई। अब जब ये क्रिस्टल्स जो है ना आपके पाँव के बिग टो में, यानी कि पाँव के अंगूठे में जब जमा होते हैं ना, फिर उसके लिए अलहदा टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं पोडैग्रा। याद रख लो कि ओवरऑल डिजीज तो गाउट है जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया कह रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की डेपोजिशन हो रही है टेंडन्स में, सॉफ्ट टिश्यूज में, तो उसको हम कह रहे हैं टोफाई, ठीक है। और अगर ये अकोमुलेशन हो रही है जी पाँव के फुट के बिग टो में, तो इसको हम कह रहे हैं पोडैग्रा। गाउट often leads to the renal failure due to deposition of the urate crystals and the obstruction of the collecting tubules। अब जो किडनी की जो हमारी ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, उनमें भी अगर जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए इन क्रिस्टल्स की डेपोजिशन की वजह से, तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से अक्सर रीनल फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अब डायग्नोसिस के लिए ज़ाहिर है हमारे प्लाज्मा टेस्ट हैं कि हमने टेस्ट करवाना है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने टेस्ट भी लिखा हुआ रेफ्रिंजेंट यूरेट क्रिस्टल, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ द टेस्ट, ठीक है, जो इसको बता रहा है। लेकिन ठीक है, टेस्ट शेस्ट इतने नहीं, वो तो आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह से भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए इन्होंने स्पेशल टाइप के 2 ये टेस्ट भी लिखे हुए हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। ये जो बाय रेफ्रिंजेंट कैल्शियम फॉस्फोरेफ्रेट क्रिस्टल्स को जो बेसिकली जज करता है। तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गाउट, प्राइमरी गाउट, सेकेंडरी गाउट। हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि हाइपर यूरिसीमिया विदाउट अ नॉन कॉज, यानी कि अगर जेनेटिक वगैरह, ठीक है, मेटाबॉलिक है और जेनेटिक है तो प्राइमरी, और अगर तुम लोग खाने पीने की वजह से, ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से अगर है, या बॉडी में न्यूक्लियोप्रोटीन्स की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी गाउट। और जिसकी वजह से ये इसके कुछ और भी कॉजेज लिखे हुए हैं जी। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, इंक्रीज सेलुलर, अगर टर्नओवर की वजह से, कि अगर बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स अगर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रीनल फेलियर, कि यूरिक एसिड, किडनीज आपकी ख़राब हैं, यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव नहीं कर रही, ठीक है, किडनीज आपकी ऑलरेडी डैमेज हैं तो यूरिक एसिड को बॉडी से नहीं निकाल रही, तो यूरिक एसिड के लेवल बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं। एक तो मैंने बताया है कि यूरिक एसिड की वजह से किडनी खराब हो सकती है, और दूसरा मैंने बताया किडनी खराब होने की वजह से भी यूरिक एसिड हो रहा है। किडनीज आपकी अगर काम नहीं कर रही तो जाहिर है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स रिलीज नहीं हो रहे, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन नहीं निकल रहे, तो फिर भी यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाएंगे और गाउट हो सकता है। और तीसरा एक लेस नाइन सिंड्रोम है, ठीक है, जो कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है।
इसकी वजह से भी जो है वो गाउट हो सकता है। ठीक है, अब हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन पता होना चाहिए गाउट है क्या। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है जी। तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है कि जी जाहिर है इसमें जो है सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया इज सीन इन द गाउट। इसके अलावा इन इन पॉलीसाइथीमिया ल्यूकीमिया, जब वाइट ब्लड सेल्स की अगर एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया या ल्यूकीमिया। ठीक है, तो इसमें भी एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड का, विच में समटाइम्स बी अकम्पेन्ड बाय द अटैक ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। कि अगर वाइट ब्लड सेल्स की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है तो फिर भी गाउट का अटैक हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए जाहिर है कि एक्यूट अटैक्स के लिए तो पेन किलर्स वगैरह ही जो है ना मेडिसिन दी हुई हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं हम ज़्यादातर वही प्रिस्क्राइब करते हैं विच एक्ट एज द पेन किलर, क्योंकि इसकी जो है ना पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है और इसमें वॉकिंग में भी, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। तो दैट इज़ द बेसिकली डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। कि जब हमारी बॉडी में जो प्यूरिन्स कौन कौन सी हैं, एडेनिन और गोनिन और साइटोसिन, जब हमारी बॉडी में प्यूरिन्स जो है ना जिनकी इनकी ब्रेकडाउन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर गाउट हो रहा है। इसके अलावा ये है खाने में तुम लोग यूरिक एसिड ज़्यादा ले रहे हो। इसके अलावा ये है कि किसी और डिजीज़ की वजह से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेस्कनाइन सिंड्रोम, या रीनल फेलियर की वजह से, या माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, इनमें से तीनों में से किसी वजह से भी अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की डेपोजिशन हो रही है तो इसका मतलब है द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। गाउट और आर्थराइटिस दोनों को हम इंटरकनेक्टेबली यूज कर सकते हैं, गाउट को और आर्थराइटिस को। अब जी फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए एक ड्रग है एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, जो कि ज़्यादा डॉक्टर्स देते हैं। ठीक है, ये गाउट जो यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बनता है ना उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। इसके पास एक और डिजीज़ है जी xanthinuria. In this disorder, large amounts of xanthine is excreted in the urine. Uric acid content of the urine is decreased. Serum uric acid level is also very low. It is due to the absence of the enzyme xanthine oxidase. Therefore, the body fails to convert xanthine into uric acid. यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म का जो एंजाइम है ना xanthine ऑक्सीडेज, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर xanthine जो है ना वो यूरिक एसिड में चेंज ही नहीं होता और इसी तरह से xanthine की फॉर्म में ही बॉडी से जो है ना वो निकल रहा होता है। तो अब ये है कि द बॉडी फेल्स टू कन्वर्ट द xanthine into uric acid. Excess amount of xanthine in the urine cause the formation of xanthine calculi. Xanthine calculi are not opaque to X-rays and can be easily missed. Administration of allopurinol also increases the urinary excretion of the xanthine. मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि xanthinuria है क्या। यूरिक एसिड जब बॉडी में बनता है, प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म है ना, यानी कि प्यूरिन्स जब ब्रेकडाउन होंगी तो फिर बनेगा ना यूरिक एसिड। तो प्यूरिन्स के एडेनिन, इससे पहले कि एडेनिन यूरिक एसिड में चेंज हो, एक जो है ना सेंटर में एक प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं xanthine। फिर xanthine चेंज होती है जी यूरिक एसिड में। जैसे मैंने बताया था कि पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन है अमोनिया, और अमोनिया चेंज होता है यूरिया में। ठीक है ना, तो अब xanthine जो है ये प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म से बन रही है, लेकिन xanthine को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला अगर एंजाइम डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में, the enzyme which is responsible for the conversion of the xanthine into uric acid, if that enzyme is deficient तो फिर क्या होगा कि xanthine uric acid में चेंज नहीं होगी और xanthine ही जो है ना हमारे यूरिन में रिलीज होती जा रही है। अब xanthine अगर बॉडी में यूरिक एसिड में नहीं चेंज होती तो इसका भी नुकसान है कि xanthine जो है वो कैलकुलाई बना देती है, यानी कि स्टोन्स बना देती है, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डेंजरस थिंग। तो इस डिजीज को हम कहते हैं xanthinuria। ठीक है, कि xanthine हमारे यूरिन में रिलीज हो रही है, यूरिक एसिड में चेंज नहीं हो रही, और क्योंकि मेजर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड है ना, उसमें नहीं चेंज हो रही, तो ये भी एक xanthine कैलकुलाई xanthine स्टोन्स बना देती है, और जो
इतने ज़्यादा मतलब कि जो स्टोन्स हैं वो ओपेक नहीं होते कि वो एक्सरे में भी समझ नहीं आते कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। तो इसकी वजह से भी फिर क्या होगा, ज़्यादा पेन्स वगैरह होती हैं जब ज़ैंथिन के भी स्टोन्स वगैरह बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो ये जो 2 डिजीज़ेज़ हैं ना, ये तुम लोगों ने वैसे ही, क्योंकि डिजीज़ेज़ अक्सर, ये ज़ैंथिन जो है ना इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है निम्रा, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है जो कि क्या कर रही है, ज़ैंथिन इज़ द इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो कि यूरिक एसिड में जिसने चेंज होना होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट product of the uric acid metabolism is basically called as the xanthine. So I'm repeating it. The intermediate product of the uric acid metabolism is called as the xanthine. So it has to convert into basically uric acid. अगर ये यूरिक एसिड में चेंज नहीं हो रही तो फिर ये xanthine के ही स्टोन्स बना देती है, ठीक है। तो इसको यूरिक एसिड में चेंज होना चाहिए। इसी तरह से जो पिरिमिडीन कैटाबॉलिज्म है, हम उसको नहीं पढ़े क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का कैटाबॉलिज्म तो हमारे इसमें था ही नहीं ना। तो लिखा भी हुआ है कि द प्रोडक्ट्स, द स्टेप्स ऑफ द कैटाबॉलिज्म आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। तो जब इसके लिखा भी हुआ है कि हमने इसको याद नहीं रखने तो हम नहीं करें। तो मैंने तुम लोगों को जो मेटाबॉलिज्म है, हमने जो कैटाबॉलिज्म है इसका यूरिक एसिड वगैरह का, वो हमने प्रोसेसेस इसके नहीं किए, ठीक है, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के। हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने सिर्फ इसकी डिजीजेस की हैं, ठीक है। यूरिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है इसकी हमने सिर्फ डिजीजेस की हैं। हमने इसका ये जो प्रोसेस है ना डिग्रेडेशन का, ये हमने नहीं किया। अब इसमें जो है ना, जो आई मस्ट से कि जो टाइप्स है ना आरएनए की, वो भी इतनी क्लियर, हर एक के फंक्शंस नहीं लिखे हुए। मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए क्या कर रहा है। तो मैं एक ग्रुप में जो है ना एक पेज शेयर करती हूँ जिसपे इनके फंक्शंस जो है ना जी वो ज़रा सही से लिखे हुए हैं, चारों टाइप्स के, ठीक है। एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और चौथी राइबोजाइम, ठीक है। तो मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगी कि जिसमें जो है ना हम इसके चारों के फंक्शंस कर लें, क्योंकि टाइप्स वगैरह आरएनए की जो इम्पोर्टेंट हैं और ये आ भी सकती हैं। अब इसमें चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, इसमें अब स्ट्रक्चर भी ऐसा जो है ना दैट इज़ नॉट गिवन, डीएनए का कोई डायग्राम वगैरह नहीं दी हुई। हालांकि जब अगर हम क्लास में होते तो हम लाजमी इसका जो है ना हेलिकल स्ट्रक्चर करते। प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ नॉट गिवन, ठीक है, कि बेसिस कैसे अटैच हो रही हैं, उनमें क्या पेयरिंग है। तो चलो पेयरिंग वगैरह तो हमने कर ली है, लेकिन डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह इसमें इस कोर्स में भी चैप्टर में भी चीज़ें रह गई हैं, वो हम क्लास में करेंगे वाइट बोर्ड पे। लेकिन जितना है ये छोटा सा चैप्टर है, जितना है उतना तो हम लाजमी करेंगे, ठीक है। बेसिस का एडेनिन गोनिन, इनका न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, क्योंकि एज सच इसमें से क्वेश्चंस इतने नहीं आते। अगर आए तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। काइंडली स्लाइड्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, सैलम्स से नहीं मिलती। हाँ जी, मैं जो है ना पोर्टल पे तो नहीं सेंड करी क्योंकि आजकल हमारी वेबिनार क्लासेस हो रही हैं, तो ग्रुप में हम लोग शेयर कर देते होते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों को बुक्स नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि किसी दिन आके जो है ना वो बुक्स जो है ना वो अपने हॉस्टल से ले लो, मिस जुबैदा से बात करो और बुक्स जो है ना वो ले लो, क्योंकि इससे पढ़ना जो है ना वो मुश्किल है। अपने हॉस्टल से आके बुक्स ले लो, कोई मैडम से बात करो कि हमारी बुक्स इधर पढ़ी हैं, अब हमारी क्लासेस हो रही हैं। तो आई थिंक इफ़ यू टॉक तो कोई पॉजिटिव आंसर ही तुम लोगों को मिलेगा। अब तो वैसे भी लॉकडाउन में काफ़ी जो है वो नरमी कर दी गई है, अब तो चीज़ें वगैरह सारी ओपन हो रही हैं। तो मैं भी शेयर कर दूंगी, मैं हर दफ़ा शेयर कर देते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो ये जो स्लाइड्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर है तुम लोग की फाइक अहमद की बुक से है, तो ये आप लोग जो है ना जिनके पास नहीं है या हॉस्टल में है, नहीं है तो ख़रीद लें, और अगर हॉस्टल में है तो आके ले लो, नो प्रॉब्लम। आई थिंक अपने रूम की चाबियाँ वगैरह तो तुम लोग पास है ना, तो यू कैन कम एट एनी डे। मास्क वगैरह पहन के मैडम की परमिशन ले लो, पहले मिस जुबैदा से बात कर लो और आके अपनी बुक्स ले जाओ, क्योंकि पता नहीं अब कब तक है लॉकडाउन, क्या सीन है। या ये भी मैं शेयर कर दूंगी, चलो इनसे जितना हो सके। ये टॉपिक्स हमने जो नहीं करने ना, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म
नहीं करना, वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ वगैरह है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट जो डिजीजेज है ना वो करनी है, ठीक है। बट डिजीजेज लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। गाउट वगैरह क्या है, जेंथोनूरिया क्या है, डिजीजेज हम करेंगे। और जो है ना मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हम नहीं करेंगे, लिखा भी हुआ है उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, अगर अभी नहीं आ सकते तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आफ्टर ईद जो है ना योर क्लासेस विल री ओपन होपफुली, आई होप सो, कि जून में जो है ना कोई पॉजिटिव जो है ना इसमें आ सकता है। लेकिन अगर जून में भी नहीं अगर ओपन होते देखो तुम लोगों के कॉलेजेस वगैरह, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुक से पढ़ना जो है ना दैट इज अनदर थिंग, और इस तरह स्लाइड से पढ़ना जो है ना दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, और डिफिकल्ट भी है ये। तो जी न्यूक्लिक एसिड में जो है ना वो जी समझ आ जाएगी तुम लोगों को, जो चीज़ हमने नहीं की, जो मैंने नहीं बोली, जो पैराग्राफ मैंने छोड़ा है कैटाबॉलिज्म वाला, बिल्कुल वो हमने नहीं करना। बाकी तो हमने काफ़ी जो है ना इसका जितना हमने कर लिया है वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक लास्ट पेज जो है, ठीक है, जो एंड पे था पैरामिडीन कैटाबॉलिज्म वाला, वो नहीं करना, और एक प्यूरीन के कैटाबॉलिज्म वाला वो नहीं करना, लेकिन उसकी डिजीजेस हमने जो है जी वो करनी है, ठीक है जी। तो कैटाबॉलिज्म जो ये वाला जो पेज अभी मैंने खोला हुआ है, इस पे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन जो है ना वो हमने नहीं करनी है। लेकिन ये इजी है, अगर कर भी लो तो न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन का मतलब यही है, कर ही लेते हैं इसको भी, कि जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए है ना, ये ज़्यादा न्यूक्लिएसिस एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे। मैं करवा ही रही हूँ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो डिग्रेडेशन है इस पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं न्यूक्लिएसिस, ठीक है। न्यूक्लिएसिस आर द एंजाइम्स व्हिच ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड्स। द न्यूक्लिएसिस फॉर डीएनए आर कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीएनए एसिस, और जो आरएनए पे एक्ट करेंगे उसको हम कह रहे हैं आरएनए एसिस यानी कि राइबोन्यूक्लियोएसिस। ब्रेकडाउन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ना, जब वो ब्रेकडाउन होंगे तो क्या बनेगा, जैसे पॉलीसेक्राइड्स हैं, ब्रेकडाउन होते हैं तो मोनोसेक्राइड्स बनते हैं ना, इसी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जब ब्रेक होंगे तो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बाय द एक्शन ऑफ द न्यूक्लियो nucleotidases produces the nucleosidases and the phosphoric acid। न्यूक्लिक एसिड की डिग्रेडेशन बड़ी सिंपल सी है कि न्यूक्लिक एसिड पे एंजाइम एक्ट करेंगे न्यूक्लिएजेस, डीएनए पे एक्ट करेगा डीएनए एजेस, आरएनए पे एक्ट करेगा आरएनए एजेस। जब ब्रेकडाउन होंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ब्रेकडाउन से मोनोन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है इस पे न्यूक्लियोटाइडेजेस जब एक्ट करेंगे, अब मोनोन्यूक्लियोटाइड ने भी तो सिंपल में जाना है ना, फिर आगे मोनोन्यूक्लियोटाइड को जब तोड़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या था, बेस प्लस शुगर और साथ में फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड की डिग्रेडेशन तो जी बड़ी सिंपल है, ये डायग्राम में भी उन्होंने बताई हुई है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड पे जब न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा तो आपका न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड्स अंडरगो फर्दर कैटाबॉलिज्म एज डिस्क्राइब्ड बिलो अंडर द प्यूरीन एंड pyrimidines, ठीक है। तो हम प्यूरीन्स का जो कैटाबॉलिज्म है ना हमने वो नहीं किया, प्यूरीन्स का सिर्फ हमने कैटाबॉलिज्म नहीं किया, बाकी मेटाबॉलिज्म जो है ना जो मैंने अभी बताया है वो तो बहुत इजी है, सिंपली के न्यूक्लिक एसिड्स पे न्यूक्लिएजेस एक्ट करते हैं, डीएनए पे डीएनए एजेस, आरएनए पे आरएनए एजेस, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहे हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड में, और मोनोन्यूक्लियोटाइड की फर्दर जब ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनेगा, मोनोन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड से आपको न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है। ये सिंपली है न्यूक्लिक एसिड की जो है ना वो डिग्रेडेशन, सिर्फ आपने कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। ओनली कैटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं करना, बाकी सारा करना है, ठीक है। ओनली कैटाबॉलिक, सिर्फ हमने जो है ना कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करना, बाकी हमने सारा करना है, मैं लिख भी रही हूँ, ठीक है। ओनली कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करना, बाकी जो तकरीबन सारा ही है जो कि हम कर रहे हैं। तो जी ये है जी न्यूक्लिक एसिड, और आई होप कि इसको जो है ना अब हम इसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है जी।
ओनली कैटाबॉलिक हमने नहीं करना है, बाकी हमने सारे ही करने हैं इसमें से। और जो चीज़ें रह गई हैं इसमें जो मैं समझती हूँ कि होनी चाहिए इसमें एडिड, वो हम इंशाल्लाह बाद में इंशाल्लाह जैसे ही हमारे लेक्चर्स रिज्यूम होते हैं लाइव फिर हम करेंगे। और जी आरएनए की जो टाइप्स हैं वो मैं तुम लोगों को एक पेज शेयर कर दूंगी, बिकॉज इसमें काफ़ी ब्रीफ सी दी हुई है, कोई ऐसा सेपरेट नहीं दी हुई। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन आस्क, और उसके बाद फिर हम इसको करते हैं जी फिनिश। कोई सवाल जवाब है तो वो तुम लोग कर सकते हो। अपनी अटेंडेंस वगैरह तो तुम लोगों ने अपनी टीचर को ही जो है ना वो उधर से लाइव हो जाती है तुम लोग की अटेंडेंस वगैरह। If there are any questions you can simply ask them। कोई भी अगर सवाल है तो तुम लोग वो आराम से पूछ सकते हो, because we have the time right now and you can ask me any question which is related to the nucleic acid chapter। If there is any question you can simply ask me। बाकी मैं बार बार यही कह रही हूँ कि प्लीज़ तैयारी साथ साथ करो, साथ साथ पढ़ोगे तो फिर ही फ़ायदा है, वरना इस तरह से जो है ना वो आप भूल जाओगे, फिर मुझसे पूछ भी नहीं सकोगे। अगर पढ़कर आओगे तो फिर ही पूछ सकोगे कि ये हमने तैयारी की थी, इसमें हमें ये मसला लगा है। ठीक है, अगर तो हाथ ही नहीं लगाओगे, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं बुक्स नहीं है हमारे पास, तो इस तब तक इससे कर लो, बिकॉज आना जाना आजकल जो है कन्वेंस जैसे नहीं चल रही, आने जाने का इशू है। तो तुम लोग अपना जो है ऑनलाइन हमारी जो मैंने बुक के ये पीडीएफ वगैरह लिया हुआ है, ये मैं सना से कहूँगी वो शेयर कर दे ग्रुप में भी। ठीक है, मैं खुद भी अभी कर देती हूँ ग्रुप में शेयर, तो मैं भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, और आप भी जो है ना वो कोशिश करो कि फिर बाकी अगर कोई चीज़ ना हो तो यू कैन आस्क फॉर एनी फ्रेंड्स। तो जी आज के लिए ठीक है जी इतना। कल नेक्स्ट टाइम पे हम जो टॉपिक मेरे ख्याल में देखते हैं कि कौन सा करें, हम हार्मोन स्टार्ट करते हैं या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं, तो आई विल लेट यू नो कि कौन सा टॉपिक जो है ना हम नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं। असल में मेटाबॉलिज्म के साइकिल्स होते हैं तो ऑनलाइन बड़ा ही वेबिनार पे मुश्किल हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट कि हम अपना टाइम ना वेस्ट करें। और कोई जो है जाहिर है नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे जो है ना वो हम करें। वेडनेसडे को तो मेरे ख्याल में हम मैटरनल न्यूट्रिशन वाला स्टार्ट कर देंगे, और थर्सडे को फिर आई विल सी कि हम हार्मोन्स कर लें, बिकॉज थोड़ा इजी है, एक ब्रेक भी मिल जाएगा तुम लोगों को। मेटाबॉलिज्म में ज़रा साइकिल्स वगैरह हैं तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट, बट ये है कि इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक जो है ना वो हम जी एंजाइम्स वाला भी मैं शेयर कर दूंगी। खुशनूद एंजाइम्स वाला भी जितने भी हम कर रहे हैं मेरे ख्याल में शेयर हो ही जाता है ग्रुप में, अगर नहीं है तो मैं ये दोनों शेयर कर देती हूँ, एंजाइम्स वाला भी और ये भी, ताकि पूरा वीक है तो तुम लोग कुछ ना कुछ तो करो। इस तरह तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर बुक्स भी नहीं है तुम लोग के पास तो दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। इस न्यूट्रिशन का भी साथ साथ करो, बायोकैम का भी करो। ठीक है, तो टॉपिक्स हमारे इंशाल्लाह काफ़ी कवर हो रहे हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में अब हमारा मेटाबॉलिज्म वगैरह रह गया हुआ है और हार्मोन्स रह गए हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स अभी रहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है जी वो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे हम प्लान करते हैं, मैं तुम लोग को बता दूंगी कि कौन सा हमने करना है। मेरा ख्याल है हार्मोन्स ही हम स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वी विल गो टुवर्ड्स द हार्मोन्स। तो जी मेरी तरफ से आप साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है।